put your hands together and welcome Anshuman Khetan, the one and only Anshuman Khetan. Anshuman, are you here? Yes, sir, I'm right here. Can you Very see? nice. So, guys, I present to you Anshuman Khetan. He is got quite an amazing story to share with you. So, Anshuman, all over to you. I'm sure you can talk to them, share with them. What's your story like? Thank you, sir. Thank you. So before I begin, let me just share with you that today morning I asked my 16-year-old general manager to go, and it took me not more than 12 hours to assess his entire KRA and make all the letters out to the different people who are going to be looking after the different responsibilities till the time that I don't get anyone. And the only reason I could do it is because minute to minute, what each and every person is involved in the factory, I'm totally aware of that. Hi everyone, my name is Anshuman Khetan. My family owns 2 schools in Noida known as the Khetan School, and I have a sulfuric acid plant in Rampur, Uttar Pradesh. I'm looking after the school and I'm looking after the factory, and my brother looking after the schools. My brother and me did this course together and we graduated in February 2019 from it. Let me clarify, I have come here to share my experience. So everything I'm saying, I have 100% experienced over the past 30 months. Meri zindagi bilkul jhand thi. It took a 180-degree turn, but for that we had to do what RJ sir said without applying our mind. Let me tell you a little bit about my life and what it was till April 2018. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगा. I hope it's all right with everyone. हिंदी बेटर है. जी सर. तो मैं केमिकल्स यूनिट चला रहा था रामपुर में, उत्तर प्रदेश में, which is a manufacturing unit. It is a mundane, uninteresting, boring, horrible business in which we produce sulfuric acid and fertilizer. जब मैंने इस प्लांट को चालू किया था, it was a shutdown unit in 2003. I made it successful और फिर मेरा पेट बिल्कुल भर गया. I am single, so obviously had no motivation to work more than what was necessary. After all, I do not have to go to anyone. I do not have anyone to earn all this for. I had to. I don't have anybody. I had to leave all this too, and no responsibilities. Resources were never a problem. When I look back today, I can say I had stagnated in my mind and was just having a heavily consumptive life. I just want. मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था 2018-19 अप्रैल तक कि मैं खाली गोल्फ खेलूं और अपने फादर के जैसे एक इंटरनेशनल लेवल के गोल्फर बन जाऊं. मैं अपने फैक्ट्री 45 दिन में एक बार आता था लोगों से मिलने के लिए. It is a continuous process plant that I am running, producing 120 tons sulfuric acid a day, and हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी केवल 5 दिनों का होता था. फिलॉसफी ये था कि अगर हम if we could not sell the material or had a shortage of the raw material, we would just simply cut the production. There was complete mayhem. पूरी फैक्ट्री मेरी जुगाड़ पे चल रही थी इस हद तक कि जब मैं ये कोर्स लॉन्च करने के लिए गया तो मेरे जनरल मैनेजर साहब who I said नमस्कार to today morning, he actually told me कि साहब आप क्यों चला रहे हो, क्यों ये सब BCI इंप्लीमेंट कर रहे हो, मैं इस पूरे प्लांट को जुगाड़ पे चला तो रहा हूँ. Can you imagine? He actually said that to me. Anyone could purchase anything and it had to be sanctioned by the Bada Babu sitting in Delhi. The indents हमारे यहाँ पे जब आते थे तो 2-2, 3-3 महीने तक परचेज ऑफिसर के डेस्क में रह जाते थे. जब तक कि कोई काम इमरजेंसी ना हो जाए तब तक इंडेंट पे साइन ही नहीं होता था. कोई सिस्टम नहीं था HR का, कोई भी आ जा सकता था. जनरल मैनेजर को कोई आइडिया ही नहीं था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है. There was complete duplication of work. While doing dispatch labor decide करती थी. 6,000 रुपए का लेबर डिसाइड करती थी कि भैया आज सल्फ्यूरिक एसिड किसको डिस्पैच होने वाला है. उनका पूरा वर्चस्व था वहां पे. There was literally no laboratory to test anything, and the testing was being done by the peon of the general manager. All payments were released as per the whims and fancies of the account staff after taking approval from the MD साहब sitting in Delhi. Can you imagine? मतलब 5 रुपए के चाय तक का कॉस्ट मैं सैंक्शन करता था कि इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. सुबह आके, and I used to work like that, and I used to feel great going back at home and telling my family members I बहुत काम किया. I remember that in the middle of the night, my people used to be running around for diesel for the generator.
बिकॉज हमने कभी स्टॉक ही नहीं रखा था जनरेटर का. I mean, I didn't know what to tell you, just how bad the things were over here. कोई डीजल का स्टॉक नहीं, कुछ नहीं. The entire effort used to be just to keep the plant running under any circumstances. प्लांट की कभी आज तक पेंटिंग नहीं हुई. अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आया, प्लांट को हमने बंद किया, रंधा मारा, रेड ऑक्साइड लगाया और प्लांट को चालू कर दिया. 30-30 साल तक यहाँ पे लोग थे जो अपने सिस्टम्स यहाँ पे चला रहे थे. सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ था ही नहीं. Everybody was fending for themselves, and बड़ा साहब was very happy playing golf in Delhi. The relationship with my staff, मैं बताऊं, उनको ये लगता था, मुझे ये लगता था कि वे कामचोर है, उनको लगता था साहब सबसे बड़ा चोर है. तो ये था हमारा रिलेशनशिप. There was basically a complete lack of interest because this was not even a small percentage of our main business. तो बस जैसे तैसे करके प्लांट को मैं धक्का मार रहा था. फिर राहुल जी के कोर्स में मेरे छोटे भाई ने इंट्रोड्यूस किया मुझे 19 जनवरी 2018 को. That was the turning point of my life. I remember sir saying, दिमाग घर पे छोड़ के आइएगा, and that is what exactly what me and my brother did over 8 months that sir trained us. I have attended his 4-day, his 1-day, his 4-day, his 8-month, and taken 10 manifestation classes. आप लोग अगर बोर हो जाएंगे ना तो ताली बजाने वाला वो सिंबल डाल दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. But I hope you guys are enjoying because I am really enjoying this. I stayed in my factory from January 2019 to December 2019 from Mondays to मैं ना थोड़ा सा पहले आपको बता मैंने इम्प्लीमेंटेशन 2 साल अपने प्लांट में रहा, पूरे 1.5 साल यहाँ पे 34 नए लोगों को मैंने हायर किया, PCEA, DME एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और केवल 4 व्हाइट एलिफेंट्स को मैंने हटाया और आज सुबह सबसे बड़े व्हाइट एलिफेंट को नमस्कार करके आया. हमने 21 पार्टियां की मैंने अपने स्टाफ के साथ, जिसमें लाइव सिंगर्स आए दिल्ली से, पूरा टेंटेज हुआ, डीजे आया, full on amazing fun, and till 5:30 in the morning we partied. 21 parties I've had. I'll show you a video later on. You guys will love it. I increased my raw material storage space by 48% and my finished product storage by 315%. I never paid any heeds to profits or running the business. मैंने सिर्फ implementation के ऊपर concentrate किया और किसी चीज पे नहीं किया. मैंने आरजे सर के मुंह से निकला हुआ एक शब्द मैंने गॉस्पेल ट्रूथ माना और किसी चीज को कभी क्वेश्चन नहीं किया. उन्होंने कहा ये कर, मैंने कहा चलो करो बिना दिमाग लगाए. my entire staff of 25 people have attended Rahul ji's manifestation course 2 times in Delhi. The only thing that really जो चीज मेरे अंदर इतनी ज्यादा बदलाव आई, जिसकी वजह से मैं अभी आपको प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह भी शेयर करूंगा कंपनी की पिछले 2-2.5 साल में क्या हुई है, कि मैंने अपने लोगों को ना बहुत रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चालू किया, उनको पूरी तरह से ऑनर देना चालू किया, क्योंकि मेरे अंदर ये भावना आ गई है, जिस भावना से मैं अब जीता हूं कि मेरे और मेरे लोगों के बीच में मेरे और मेरे लोग जो हैं उनमें वही खून दौड़ता है जो मेरे अंदर दौड़ता है, उनमें उनको वही पेन होता है जो मुझे होता है. The things that I aspire for are the things that they also aspire for, and there is no difference. We are all human beings, just transient over here. This course is I mean, I can't even tell you how much it's changed everybody over here. 77 checklists और 65 FMSs मेरे up and running है. सर आप बताइए तो. हाँ सर, कितने FMS बनाए? सर I think 77 checklists and 65 FMSs. आपने हमको अपना पर्सनल लाइफ नहीं बताया. पर्सनल लाइफ आप कैसे थे बिफोर जॉइनिंग BCI? So I was just a party animal. I was a complete page 3 guy. I was just having a so-called blast in my life. 45 दिन में एक बार मैं अपने फैक्ट्री आता था. ब्रदर के साथ नहीं बनता था, फादर के साथ नहीं बनता था, मदर के साथ तो बिल्कुल ही नहीं बनता था, because she was always on my case to do something. I mean, I'm 42, sir, and you can imagine till the age of between the age of 30 and 40, done nothing, sir, with my life except for have a good time and blow up money, sir. Good time मतलब? वही सर, पार्टियां और हॉलीडेज. हॉलीडेज तो एक्चुअली मैं कोर्स के बाद अब ज्यादा करने लगा हूं सर.
अभी 5 हॉलीडेज में लेके आया हूं, the 6th one। तो अंशुमन बता नहीं रहा, अंशुमन पार्टी एनिमल समझते हो? पार्टी एनिमल मतलब जो हर रोज रात को किसी पब में या डांस में या डिस्को में बैठा रहता है और रोज रात को दारू पीने वाला आदमियों में से था, जो सुबह से रात तक इसका एक ही काम था कि मैं पार्टी करूं, दारू पीऊं, ऐश करूं, दारू पीऊं, ऐश करूं, because he belongs to a very wealthy Khetan family and he's blessed in that way। तो मतलब ये बिल्कुल पेज 3 आइटम है। पेज 3 आइटम समझते हो ना आप लोग? पेज 3 आइटम समझते हो? हाँ नहीं? जिसकी फोटोएं आती हैं पार्टी करते हुए। ओके ओके, सॉरी अंशुमन, आई एम सॉरी इफ यू डिडंट लाइक दैट, बट Tarun bhai, I'm not feeling relieved at all because I don't have a general manager production and I need somebody. Yeah, Avinash, you know me. All right, bro। So I'm not feeling relieved at all because I don't have anybody looking after the production. I don't know how to manufacture sulfuric acid beyond a little bit of what I've learned in the last 2 years। So I'm going to now look for a general manager, but मैं इतना जानता हूँ कि इतने अच्छे systems हैं। आप बीच में ना स्टक हो अगर गए। 3 महीने भी लगे मुझे ढूंढने, मार्केटिंग को पूछना होता है, परचेज को पूछना होता, परफेक्टली हर एक चीज चल रहा है क्योंकि हर एक चीज में FMS लग गया है। तो it doesn't matter who's there, who's not there for me। Sir, can I continue? Yes, please। So let me explain a little bit about, sir, do you want me to show some checklists and FMSs now or later on? Later on। ठीक है, let me explain a little bit about how the implementation of this course has changed me and my organization over the past 2 years। मेरे 30 साल पुराने माली थे, उन्होंने मेरा कल्चर स्टेटमेंट बनाया, गर्व से आगे बढ़ो, which has become our slogan used in all our stationery and used even on our website। This is a public limited company। All the people in the organization have become one, all the departments are integrated, everybody including my senior staff is now coming on time to the factory। Everyone is always busy, they all know their KRAs and more importantly मैं उनका KRA जानता हूँ। We have automated all the systems and everyone has their set jobs and they do only that and are supremely tied up। मेरी ये है मीनू, अभी वो रहेंगी यहाँ पे हमारे साथ। सर वो अब HR देख रही है, लाइजनिंग देख रही है और 20 मेंबर का टीम है MD उसका, जिसमें PC, DEO, CRM, DME सब है, वो उनको भी पूरी तरह से संभाल रही है। Planning is not anymore for this week or next month or the next month। Our production sales planning is not planning अब सिर्फ इस हफ्ते की नहीं होती, प्लानिंग अगले 60 दिनों की होती है, जिसमें मुझे करीबन 60 मिनट अब करीबन 30 मिनट, मैं 15 मिनट प्रोडक्शन, मैं 15 मिनट परचेज पे बिताता हूँ और 15 मिनट मार्केटिंग पे बिताता हूँ हर हफ्ते। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है मुझे। जो चीज हम हर रोज करते थे, अब हम अगले 2 महीने के लिए प्लान करके चलते हैं। आई एम नॉट अफ्रेड टू लूज आउट ऑन एनीवन as everyone has made themselves replaceable after putting things on the FMSs and checklists। मेरे 40,000 पैरामीटर्स हैं जो हर रोज मेरे प्लांट में नोट होते हैं। कितने पैरामीटर नोट होते हैं? 40,000 पैरामीटर्स are noted in 3 shifts and in case in case something is not happening right, anybody is acting smart, I'll just hire somebody else who is desperate, not deserving, which is another one of sir's mantras। हम कभी किसी डिजर्विंग आदमी को पोस्ट में नहीं रखते, हम सिर्फ डेस्परेट आदमी को रखते हैं और फिर हम उसको सिखाते काम कैसे करना है। And I carry on running the plant। 40,000 पैरामीटर्स नोट होते हैं रामपुर में। जी सर, मैं थोड़ी अपनी कंपनी के बारे में बता दूं, ये मेरे दादाजी ने चालू किया था 1986 में, 84 में, और फिर पापा ने टेक ओवर किया, ताऊ जी ने देखा, काफी लोगों ने देखा और 2002 में जाके बंद ही कर दिया। उसके बाद 2003 में मैं आया, मैं चलाया घिस घिस के जैसे तैसे करके इसको 17 साल खींचा। फिर आप आए, अब सर मुझे इसको चलाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप चलती है और मेरे लोग चलाते हैं। और सर परचेज के खाली मतलब सर everything goes through 5 different processes, through 5 different steps, and not one person is not responsible for anything, the FMS is responsible। उसकी भी पूरी PC एक्सप्लेनेशन बन गई है और उसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन बन गया है कि अगर परचेज वाला हटता है तो 3 दिन के अंदर कोई नया आदमी आके पूरा परचेज देख लेगा। 17 स्टेप्स हैं सर और बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हैं। हमने परचेज ट्रैकिंग भी कर दिया है, तो अगर कोई आइटम यहाँ पे परचेज किया जाता है तो उसका पेमेंट भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट मनमौजी नहीं कर सकता है।
within a stipulated time and the stipulated amount he has to do the payment. और ये सारा डेटा, ये सारे लोग आपके बहुत पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, कैसे हैं? रामपुर में कैसी क्वालिटी मिलती है लोगों की? एक सेकंड मीनाक्षी, इधर आना, जल्दी आओ सर, मेरी बेटर बताएगी ना। आओ। नमस्ते सर। नमस्ते जी, आप अपना ये स्क्रीन थोड़ा नीचे कर लीजिए। हाँ जी, जी सर। हाँ जी, कैसे लोग हैं, जल्दी से बताइए। यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है सर, वो लोग 10th पढ़े हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम पढ़े हुए हैं। जो हमारा पियोन है वो भी भरता है, और जो हमारे यहाँ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में है, क्लीनिंग का काम करते हैं, वो लोग भी गूगल फॉर्म के थ्रू पढ़ते हैं। तो हम, तो आपका पीएन भी गूगल फॉर्म भरता है, सब लोग भरते हैं, और आपके बाकी सब जो लोग हैं, स्टाफ हैं, वो कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको गूगल रामपुर में नहीं है सर बहुत ज्यादा। आई थिंक पोस्ट ग्रेजुएट तो कुछ ही लोग होंगे, अदरवाइज सब लोग ग्रेजुएट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट केवल मेरा जीएम है और कोई भी नहीं है। जी, 10th है, 12th पास करके हैं। कुछ जो हमारे पीसीज वगैरह हैं वो 12th किए हुए हैं उन लोगों ने। हमने अपने सारे गूगल फॉर्म्स हिंदी में किए हुए हैं, और पीसी एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में किया हुआ है। काफी जगह हम लोगों ने हिंदी यूज किया, सर्कुलर भी हम हिंदी में निकालते हैं, तो वो लोग अच्छे से समझ जाते हैं सारी चीजें। बट बेसिकली ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है, और ये सब मतलब रामपुर छोटी जगह है, बड़ी जगह है? Sir, Rampur was ranked the worst town in India in 2018 August in the middle of your course when I was doing it. Okay. It was ranked the #1 worst town in India to live in. It's such a bad place. ठीक है जी, बढ़िया। Okay, carry on. Sorry. Yes, sir. Yes, sir. I'll just adjust the camera a little bit. So sorry. So sorry. Yes, sir. So can you see me? हाँ जी। मेरी पूरी एमडीओ 3 दिन हफ्ते में वैसे ही पहले घर से काम करती थी। लॉकडाउन के बाद अब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। I have given up my office in Delhi and it's as it is a waste of space, time and money. मैंने अपने घर में एक छोटा सा चेम्बर बना लिया है। मीटिंग के लिए फ्रेंड्स क्लब चला जाता हूँ या डेली गॉल्फ क्लब चला जाता हूँ। कोई जरूरत ही नहीं है मुझे किसी चीज की। ऑफिस है हमारे स्कूल में। मैं 2 साल में सर स्कूल ही नहीं गया हूँ। I've given up my chamber in the school. There is no use of going to office, no. What am I going to go and do over there? I don't have anybody. I've shifted everything into my production unit over here. तो स्कूल भी ऑटो पायलट पे है भाई का? Sir, you know better than me. बता दो लोगों को, पता लगेगा। एक दो स्कूल Admissions are 99%. His collections have been 98% over the last entire Corona period. There is not even one school in India which has had a 98% collection. He was showing it to me yesterday only. उसका तो मेरे से भी ज्यादा automated है सर। सारी चीजें। हाँ सर। सारा स्कूल सब कुछ, टीचर, ये वो, एडमिन, ट्यूबलाइट, माली, मतलब कॉलेज। Mind-blowing checklist, sir. Mind-blowing checklist he has made. I mean, he and me, what work he has done is absolutely brilliant. Very nice. He did digital marketing, and then he said that his admissions are up to 99%. He can't take any more people. In fact, now we are expanding the school and getting 1,000 more children, and we are opening up another school, sir. तो आपका स्कूल का पूरा मतलब आप कह रहे हो कलेक्शन भी कोविड के दौरान 98% है, और जो एडमिशन मतलब सीट्स हैं वो फुल चल रही हैं? Yes sir, yes sir, absolutely sir. वेरी नाइस जी, ठीक है। और ये तब है जब वेदांत अब once a week काम कर रहा है, या कितना काम करता है हफ्ते में? तो वो स्कूल में बैठने ही बंद कर दिया। कहता है कि लोग परेशान करते हैं, तो he prefers to just work out of his house. He's made a small office chamber in his house and he's just working out of there. He doesn't go to school anymore, sir. जरूरत ही नहीं है ना सर, वहां जाके क्या टाइम वेस्ट करना है। और पहले क्या होता था? सर आई थिंक वो 7 दिन वहां पे नहीं, वो 8 दिन हफ्ते में वहीं बैठता था, और he would spend 12 to 15 hours a day in the school. 12 to 15 hours. He was doing a lot of work. Very nice. ठीक है, आप बताओ अपनी कहानी। So on the मैंने कहा कि मैंने अपना ऑफिस गिव अप कर दिया। मैं अपने थोड़े पर्सनल फ्रंट के बात बता दूं। I have not partied as much as I have in the past 2 years. I have not missed a day of my workout. मैंने खूब सारे नए दोस्त बनाए। मैंने अपने सारे पुराने सिंगल दोस्तों को छोड़ दिया। बीसीआई के कोर्स से ही जो हमारा टाइगर ग्रुप था, ग्रुप्स बना दिए थे सर ने, and I have made my best friends from this class and we are still so bonded together. I got in touch with all my old school friends and we become one huge group now. मेरी पूरी फ्रेंड सर्कल बदल गई है, सिर्फ धंधे वाले रह गए, और जो रात को मतलब रियली एंजॉय ourselves with all my friends.
I have not traveled as much as I have. In fact, लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के बिल्कुल बाद मैं 5 वेकेशंस पे गया हूँ, इंक्लूडिंग जब मेरे को 45 दिन कोरोना खुद हो गया था. I was stuck in my factory. उसके बावजूद 5 वेकेशंस पे गया हूँ. I have just come back from Rajvilas last week and I'm headed again to Sukhvilas for New Year's. I have been inducted इसी दौरान. I was inducted 2019 जून में EO गुड़गांव में. It's a great platform to be on. I have conducted a couple of manifestation classes and now I'm starting an employee empowerment program known as Coffee with Anshuman. Any course that I take up, I'm always called for testimonials like I'm here today. I mean, ये एक बंदा जो सिर्फ गोल्फ खेलना चाहता था, बिल्कुल अय्याश था, सिर्फ लाइफ में एंजॉय कर रहा था, आज आप जैसे दिग्गज एंटरप्रेन्योर्स के सामने बैठ के स्पीच दे रहा है और आप लोग सुन रहे हो. What else could be a greater proof of the good of this course? From becoming the black sheep, I'm now revered and treated with a lot of honor and respect everywhere I go, especially within my family. My black sheep मतलब? Sorry sir? Black sheep मतलब? Black sheep मतलब संजय दत्त? मतलब क्या? मतलब खानदान सर क्या रहती है? अय्याश जिसको बोलते हैं ना, बड़ा बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है ये. 10 साल मैंने जिंदगी का वही किया सर. And I'm saying it very unabashedly because I know the universe is hearing me and it's going to shower me with all its अब क्या है? सर आपके सामने हूँ. Okay, very nice. चलिए ठीक है, carry on. Sorry. मेरे माँ बाप जिनसे मैं हफ्तों दूर रहता था, सेम घर में रहने के बावजूद अब मेरे क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट्स, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए. मेरे फैमिली से मुझे इतनी इज्जत मिल रही है, वो पर्सनल या बिजनेस कोई भी डिसीजन चाहे स्कूल का हो चाहे कुछ भी हो, जहां मैं स्कूल में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ. माय ब्रदर talks to me every week. We have a 3-4 hour meeting ki bhaiya this is happening, that is happening. It's so satisfying for my mom and dad. I mean, at the end of this whole charade, इस पूरे भागम दौड़, इस पूरे दुनिया की चीजों को देखने के बाद मैं सिर्फ एक चीज कह सकता हूँ कि सारी खुदाई एक तरफ और परिवार से जो इज्जत मिलता है ना वो एक तरफ. मेरे फादर सारा काम वाम छोड़ के अब सिर्फ गोल्फ खेल रहे हैं. He is in the Limca Book of Records and now he's coming to the Guinness Book of Records. He is having a blast. My mom is holidaying 8 months of the year and spending all the time with her grandchildren. There is no discussion anymore of money and business not doing well or worry for growth, because sir ने हमें सिखाया और हमारे परिवार वालों को भी सिखाया कि कर्म करो और जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा. I am feeling bloody wow for myself. And it's as if I'm enjoying and living every moment of my life. And this is how I felt all through the course. I strongly believe in working between my breaks. And that is why I'm going to be heading to Calcutta in the 3rd week of Jan, Jaipur in the 4th week of Jan, Maldives in Feb. I'm either going to go to Vana or Dehradun for Holi. In April, I'm going for a 6-day retreat to Goa. My breaks are not less than 5 nights, 6 days anywhere. You can imagine, आज सुबह मैं अपने जनरल मैनेजर साहब को जो मतलब who I'm so dependent on, I've told him to go and I'm standing and I'm being able to talk to you. Can you imagine? और अगर यही बात होती कि हमारे फैक्ट्री में अगर हमारा अकाउंटेंट तक क्विट कर जाता, सर हम बिस्तर पकड़ लेते हैं. ये परम सत्य है कि अकाउंटेंट कैसे क्विट कर गया. And yeah, I told my GM, you go, and I'm here standing and giving this and I'm doing this. I would like to share my greatest reason for success in this course, which has been my scheduling. जब FMS दिखाने के लिए बोलेंगे allow करेंगे तो मैं scheduling भी दिखाऊंगा. The business results. हाँ sir, sorry. You have rights to share. सचिन आप एक शेड्यूल दिखा सकते हैं प्लीज जल्दी से? Yes sir, yes sir. जल्दी से दिखाइए प्लीज. You know, I'm sharing about the holidays and all. I'm not showing off to you all. I'm just telling you कि हमारे पास 2 दिन नहीं होता छुट्टी लेने के लिए. और यहाँ मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ अपने लाइफ को. ये देखिए, बिफोर आई गो, जब मैं फैक्ट्री में आता हूँ ना शाम को काम वाम खत्म करके, तो मेरी ये आती है मेरे पास. 15 मिनट हम लोग बैठते हैं, गिवाई दी वॉच, और बताती है सर कल ये काम है, मैंने इस तरह से शेड्यूल किया है. इमेजिन, दिस इज हाउ ब्लडी मल्टीनेशनल्स वर्क यार.
मेरी इतनी छोटी सी फैक्ट्री है, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा हूँ और मैं ये सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ फ्री में, और वो भी मेरी ये पूरा बना के दे रही है. Isn't this just mind blowing? My breaks are in this, my lunch time in this. I know exactly why I'm doing what I'm doing and what I'm going to do the next day. और कभी ओवररन हो जाता है तो हो जाता है, मैं वो किसी और अगले दिन ले लेता हूँ. Very nice. Sir, just imagine this, sir. I mean, how pleasurable it is for me. What a pleasure it is for me to see this happening. The business results, my friends, I'm going to just share with you. I didn't give a damn because I never worked for it. I only worked at implementation of this course, and this is really a byproduct of the implementation. I have no clue how this has happened, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक प्योर कमोडिटी है, 5 रुपए केजी पे बिकता है, whereas पानी 20 रुपए केजी में बिकता है. दो नहीं, अब तो 4 या 5 नए प्लांट्स आ रहे हैं in the vicinity of 100 kilometers, and in spite of all of this, I want to show you the results. This is a public limited company, and we have published results which you can access. Sachin, can you show me the results, please? Yes, sir. अच्छा, तुम लेटेस्ट दे दिए, थैंक यू. ये देखिए 2017, 18 और 18, 19 में मेरा टर्नओवर, मैं 2018 में ज्वाइन किया था कोर्स, 2018 अप्रैल में ज्वाइन, मई जून में ज्वाइन किया था. तो 2018-19 का मेरा रिजल्ट है कि 42.44% मेरा टर्नओवर बढ़ा, प्रॉफिट 215% बढ़ा, प्रोडक्शन सेम रहा क्योंकि आप प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हो. 2018-19 और 19-20 में मेरा 3.52% टर्नओवर बढ़ा, 215% के ऊपर मेरा प्रॉफिटेबिलिटी 44.41% बढ़ा, और एसिड का प्रोडक्शन, क्योंकि हमारा टरबाइन 12 साल तक बंद था, वो भी सर के वजह से चालू हुआ क्योंकि इतना दम आ गया हमारे पीछे. You know, I can now just ask anybody to bugger off, and that's what I did then. And my production is increased by 16%. Now, this figure is what I'm really proud of, sir. This is purely because of manifestation and because of the fact that the plant is on autopilot. मेरा 2019-20 और 20-21 में खाली जुलाई से नवंबर का मैं फिगर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अप्रैल में और जून में तो प्लांट ही बंद थी मेरी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. तो मेरा टर्नओवर -10% हुआ है, एसिड का प्रोडक्शन -9% हुआ है, बट प्रॉफिटेबिलिटी 9% बढ़ा है. मुझसे मत पूछिए कैसे, क्योंकि मुझे खुद ही कोई आइडिया नहीं है कि कैसे बढ़ा है. मैं तो सिर्फ काम कर रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ अपने लाइफ को. Very nice. Very nice. Sir, I showed these figures because I'm declaring to the universe that post-pandemic, I'm making more money. I'm spending all my time in developing myself spiritually, which has no direct correlation actually with the sulfuric acid plant. Lastly, I would like to leave you with my, I would like to just, sir, it should be, क्या करें sir? थोड़ी शीट्स दिखा दो. हाँ, फिर मैं कंटिन्यू. अभी आप ये बताओ, 2 चीजें बता दो. तो आपके कोर्स करने के बाद आपका प्रॉफिट डबल हो गया, मगर अभी कोविड के दौरान प्लांट बंद था, जो भी था, तो उसमें अभी इस साल अभी प्रॉफिट के फिगर्स आए नहीं, अभी 9% हुआ है, अभी काम चालू हुआ है, तो जो आएगा वो मार्च में आएगा. तो 9% कोविड के पीरियड में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ा है. अच्छा, 9% पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलरेडी बढ़ गया है. यस सर. आप अब वेरी गुड. हफ्ते में कितने दिन काम करते हो आप? सर अभी ये जीएम साहब की वजह से, ये सब की वजह से, आई थिंक आई वाज वर्किंग अबाउट 2 hours a day at the factory work, but usually it's not more than maybe 4-5. सर क्या बताऊं मैं, 2-2, 3-3 आप उनको बोलो ना, वो बताएंगी. सर मैं आओ इधर मीनाक्षी, 1 सेकंड. मैं 1-2 घंटे से ज्यादा काम करता ही नहीं हूँ सर फैक्ट्री का. मेरे पास फैक्ट्री का काम नहीं है सर, और बहुत काम है, एक्सपेंशन का, इसका उसका, ग्रोथ. हाँ जी, ये ऑपरेशंस में और फैक्ट्री में कितना टाइम करते हैं हफ्ते में? सर हाँ, ज्यादा टाइम ज्यादा नहीं, मतलब कितना टाइम हफ्ते में बिताते होंगे फैक्ट्री के ऑपरेशंस में? अभी फैक्ट्री के काम में, यहाँ पे नहीं, फैक्ट्री को चलाने में बहुत ही कम हो गया सर. तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, जितना मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था उससे भी बहुत कम हो गया. हफ्ते में हम लोग को कई बार ये लगता है कि सर क्यों आ रहे हो, हार्डली 4 घंटे का कोई ऐसे कुछ काम निकलता है. जबरदस्ती में मुझे सर आते हैं, इस वजह से बोलना पड़ता है कि ये भी देख लीजिए आप आ गए, अदरवाइज तो मुश्किल से 4 घंटे हफ्ते में. जी सर.
तो ये प्रॉफिट भी डबल हो गए हफ्ते में 4 घंटे काम करके। जी सर। सो वो भी आते मैं हैं तो फोर्स करके आता हूँ, क्योंकि फिर ये बोलती है आप आते हो सिर्फ Disturb- मजाक करते हो, एक पार्टी हो जाती है और फिर आप हमारा सारा काम डिस्टर्ब कर देते हो। लोगों को आप बुला बुला के पूछते हो चीजें, क्यों पूछते हो सर? ईएम में तो सब चीज दिख ही रहा है आपको। हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं सर, क्या है ऐसे। सर के आने से आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो? जी सर। सर काम डिस्टर्ब करते हैं। और सर आते हैं तो बोलते हैं ठीक है ये वाली मीटिंग कर लो, वो कर लो, कुछ होता नहीं सर दिखाने के लिए, तो फिर जबरदस्ती मीटिंग करते हैं। तो जितने एचओडी हैं या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं उनको भी बुलाना पड़ता है, तो फिर टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, वेरी नाइस जी। तो सर सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, सबका टाइम खराब करते हैं। हाँ जी सर। ओके जी, बहुत बढ़िया। पिटेगी अब ये। अच्छा सुनो, अब आप अपनी शीटें दिखा लो, आप ही दिखा दो जी। आप इसमें दिखाओ, नहीं, हाँ दिखाओ, शेयर करूँ? हाँ शेयर कर ले। Guys, do you want to see the sheets? Yes, no? हाँ जी, ये क्या है? ये आपकी मेन प्रोसेस शीट्स हैं। यस सर, ये इंडेक्सिंग है हमारी पूरी टोटल शीट्स की। ये सारी शीट, इतनी सारी शीटें हैं आपके पास। जी जी सर। ठीक है जी, तो इसमें आप क्या दिखाना चाहेंगे? 1 मिनट, थोड़ा धीरे धीरे जाइए। फैक्ट्री व्हीकल रनिंग, गनमैन चेकलिस्ट क्या होता है? सर गनमैन दिखा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का सर, ये जितने हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में लोग हैं, गार्ड्स हैं, ये लोग रात में पहले सो जाते थे, तो हम लोग को पता नहीं चलता था कि ये लोग राउंड ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इसके लिए हमने एफएमएस बनाया हुआ है, ये चेकलिस्ट एक, ये 6 राउंड होते हैं इसमें और 6 स्टेप हैं। तो इसमें गनमैन जब आते हैं ड्यूटी में तो वो लोग अपना स्टार्ट कर देते हैं, राउंड लेना ये जाते हैं। दिखाइए जरा, पहला वाला गनमैन जो है गेट नंबर 1, 11:08, ये भी दिखाइए। सर। ये नहीं। गेट ये क्या है? ये जो मैं बता, ये सर गेट नंबर 1 में उनका राउंड स्टार्ट होता है। गेट नंबर 1 पे जाके गार्ड फोटो क्लिक करते हैं, तो जिनकी ड्यूटी होती है गेट नंबर 1 पे जिन गार्ड की, उनको साथ में खड़ा होना होता है और फोटो क्लिक करवाते हैं। अगर ये रात में टाइम भी आ जाता है उसका, कितने बजे क्लिक किया? टाइम भी इसमें शो हो रहा है और डेट भी शो हो रहा है, तो वो लोग एक ही पिक्चर को 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं। और Very- अगर यहाँ पे गार्ड नहीं खड़ा है उसके लिए फिर पीसी हेल्प टिकट रेस कर देंगी, या डेट या टाइमिंग्स के बीच में डिफरेंस लाइक 10 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए, जो वहां पे हमने जो हमारे शीट पे आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं Very होता good. तो पीसी वेरी, वापस जाइए। तो मतलब हर गार्ड को हर समय रात के 2 बजे भी जो करना है वो करना ही पड़ेगा। सारा काम करना है सर। एक राउंड से दूसरे राउंड के बीच का टाइमिंग्स भी 45 मिनट्स है। तो ये सब गूगल फॉर्म गार्ड भरता है? जी सर, ये गूगल फॉर्म गार्ड के द्वारा। ये गनमैन भरता है, जो गनमैन है? जी सर। और ये गनमैन बहुत पढ़ा लिखा है कि ये तो क्या, ये तो गार्ड? 10th होगा सर। सर हम सिक्योरिटी एजेंसी को 8,000 रुपए एक गार्ड का देते हैं रामपुर में, तो आप सोचिए वो सिक्योरिटी एजेंसी गार्ड को क्या देती उनको है। इंग्लिश नहीं आती है तो वो लोग। ठीक है जी, वापस जाइए। सीआरएम मेल ट्रैकिंग एफएमएस, दिखाओ सीआरएम मेल ट्रैकिंग एफएमएस। ये क्या है? 24 नंबर जी सर। समझाइए। सर इसमें सीआरएम जो है वो मेल चेक करती हैं जितने भी सेल्स डिपार्टमेंट के लिए आते हैं, और उनके बाद उनको जो राइट पर्सन है उनको वो भेजती हैं। वो लोग कितने बजे रिस्पॉन्ड करते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेती हैं, और सारा उसमें जो ये टॉपिक स्क्रीनशॉट दिखाइए एक बार, ये लेटेस्ट स्क्रीनशॉट, ये लेटेस्ट कब का है? ये 18 आज का। ये खोलिए जरा। वो today's है। ये ईमेल जो आपके पास आती है उसकी फोटो भी चढ़ जाती है? हाँ जी सर। एवरी ईमेल दैट कम्स इनटू योर कंपनी? जी सर। नहीं सर, सेल्स डिपार्टमेंट में जितनी आ रही हैं उनके लिए बनाया, उनके लिए सीआरएम में बनाया गया है सर, और इसमें भी टैग लगाया गया कि सीआरएम उसको भेजेगी, आदमी से कंफर्म करेगी उसे मिल गया, उसके बाद वो आदमी वापस मेल देगा। अगर मुझे चेक करना है तो मैं करूंगा, नहीं तो वो एज इट इज भेज देगी। ये सब में टैग लगा हुआ है सर। वापस सैलरी इज डिपेंडेंट ऑन डूइंग दिस इन टाइम एंड डूइंग इट। आगे जाना, लेफ्ट, जस्ट गो अहेड। तो ये उसने सीआरएम ने कॉल फॉरवर्ड की और कॉल कर दिया। आगे जाना। एक सेकंड, पीछे जाओ स्टेप नंबर 4 में।
Yes, sir. Respondent to send mail reply to CRM and inform her immediately. ये In case of खोलना, doubt, ये खोलना, PDF खोलना इसका। इसी का, हाँ। तो ये मेल वापस की कि नहीं, उसकी भी फोटो, सारी मेल यहाँ कैप्चर्ड है। हाँ जी सर। वाओ। सर हम किसी भी चीज को चांस पे नहीं छोड़ते हैं, हम उस डॉक्यूमेंट को यहाँ चढ़वा देते हैं। तो अब ये मालूम है कि मेल क्या आई, मेल क्या गई, उसने वापस किया नहीं किया, क्या भेजा, कैसे भेजा, कोई भी देख सकता है। वेरी नाइस, गो बैक, लेट्स गो बैक टू द मेन शीट। ओके, ये जुगाड़ क्या है? जुगाड़ सर सर हमें फोकलिफ्ट चाहिए था अपने फैक्ट्री में, 4 लाख रुपए का आ रहा था। हमने कहा फोकलिफ्ट नहीं, एक मोटरसाइकिल लो ब्रांड न्यू, उसमें एक कार्ट लगाओ, और उसको हमने जुगाड़ भी, उसको सर हिंदी में जुगाड़ ही बोलते हैं सर। ये देखिए ये जुगाड़ है। तो हमने जुगाड़ का पूरा चेकलिस्ट ही बना दिया, व्हीकल्स का भी सारा ऐसे ही बना हुआ है। अब ये आप क्या, समझिए। ये क्या है? हिंदी में मेरे को आता नहीं, सॉरी। सर दिस इज टू लिफ्ट मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर एंड ट्रांसपोर्ट इट विद इन द फैक्ट्री लाइक अ फोकलिफ्ट। तो ये क्या, फोकलिफ्ट कॉस्ट 4 or 5 lakhs, ये 60,000 रुपए में बन गया हमारा। ये क्या है? ये लिस्ट, ये चेकलिस्ट? मोटरसाइकिल है। नहीं। अच्छा सॉरी। ये चेकलिस्ट किस बात की है? टाइम ये स्टैम्प? checklist, इस चीज के लिए सर कि इसका एक रजिस्ट्रेशन है, इंश्योरेंस का है, और इसमें हैंडल लॉक, ब्रेक सिस्टम, सारी चीजें ठीक काम कर रही है नहीं। तो जो लड़का इसको चलाता है वो तो 10th भी नहीं ठीक से पढ़ा हुआ है, 10th भी नहीं उसने किया हुआ है, तो वो इसमें मटेरियल इधर से उधर फैक्ट्री में वो ले तो जाता ये है। उसकी चेकलिस्ट है कि सब कुछ सही है कि नहीं, हैंडल ठीक है नहीं, ब्रेक वो गूगल फॉर्म के थ्रू इसको डेली भरता है सर, मॉर्निंग में या इवनिंग में, और उसको पीसी चेक करती है जहाँ पे अगर समझ कोई गया, चीज समझ सही नहीं है। एक तो वो सेकंड, लिख इसमें देता है। हाँ, उसमें ये चेक करता है कि लाइट ठीक है कि नहीं, जुगाड़ की सफाई हो गई कि नहीं, आगे क्या जी है? सर। कवर, उसमें रात में उनको कवर लगाना होता है, वो ठीक है या नहीं है, सारी चीजें। अरे 18 नवंबर तक का दिखाओ ना, आगे Yes, चलो sir. दिसंबर का दिखाओ, नवंबर का क्यों दिखा रहे हैं आप? Yes, यहाँ sir, तक का yeah. दिखाइए, पूरा पूरा नीचे दिखाइए। कल रात तक का सर 7 PM he parked the vehicle, cleaned the whole thing. So I can't tell you, the factory vehicles are looking so nice because it's all being maintained. इतने सारे पैरामीटर्स ऐसे जब वो इस पे कवर लगा देते हैं रात में पार्किंग करके, उसके बाद इसको भरते हैं। वेरी नाइस, लेट्स गो बैक, वेरी नाइस, वी गेट द आइडिया। मतलब कल तक का सब कुछ इसमें दिया हुआ है, आज 19 तारीख है, ये कल तक का है। ओके, सर वो दिखाना है आपको, जो हम लोग यहाँ से मटेरियल डिस्पैच करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अभी कौन सी टैंकर अंदर लगी हुई दिखा है? मैं तो देखता ही नहीं हूँ सर, ये सब यही लोग देखते हैं। सचिन सिया ईवे बिल भी दिखा दो कि ईवे बिल क्या है, कैसा, ये क्या है? ये सर टैंकर डिस्पैच का रहता है हमारा, जो टैंकर डिस्पैच होता है यहाँ से। ये डिस्पैच कौन कौन, कैसे कैसे, क्या क्या डिस्पैच हो रहा है, सारा इसमें लिखा हुआ है। जी सर। चालान की इमेज खोल के दिखाना, ये चालान की इमेज, हर डिस्पैच के साथ चालान यहीं पर उसका फोटो यहीं खींच के भरते हैं। जी सर। और ये सब टाइम पे जा रहे हैं, यहाँ पर नोट हो रहा है। जी सर। वरुण जी, आई मेड द चेकलिस्ट। ये 19 तारीख, 19 मतलब आज। यस सर। तो ये आज ये अभी डिस्पैच हुआ होगा, आज सुबह से लेके अब तक। जी सर। वेरी नाइस, गो बैक। तो ये भरा है आज, तो ये लेटेस्ट मतलब जो भी है। सेंचुरी पल्प एंड पेपर को टैंकर नंबर, 1 मिनट बड़ा करना, लास्ट रो। यस सर। टैंकर नंबर ये है, नीचे जाना। टैंकर नंबर ये है, क्वांटिटी 30 है, अप्रूव्ड है। एक्चुअल क्वांटिटी इसमें नहीं लिखी हुई, बट बाकी सब में लिखा है 10 है, 9.665। तो मतलब एक्चुअल क्वांटिटी तब आएगा जब इसका ग्रॉस वेट बढ़ा जाएगा ना, व्हेन इट कम्स बैक, तभी अच्छा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी मतलब टेंटेटिव क्वांटिटी 10 मीट्रिक टन था, एक्चुअल क्वांटिटी 9.665 है। ग्रॉस वेट इसका इतना है, बिल नंबर ये है, एसओसी नंबर ये है, चालान इमेज। आगे जाना। फोन कॉल, गूगल कॉल, ये क्या था? धीरे 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 भैया, पीछे चलिए थोड़ा। वेरी नाइस। हर चीज इसमें कैप्चर करके रखी हुई है कि फोन कॉल भी हुई है, वो
फोन कॉल भी रिकॉर्ड होती है इसमें? जी सर, सब होती है इसमें। ये इसमें नहीं होती है, बट जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले पार्टी से बात करते हैं वो रिकॉर्डिंग होती है। वो दिखा दीजिए। वो तो वो अलग है, वो है तुम्हारे चलो पास? वो छोड़िए, वो छोड़िए। Let it be, sir, that. लेट्स गो बैक टू द मेन शीट। तो ये देखिए सर, एक सेकंड, ये पार्टी को हम मैसेज देते हैं, दिखाएं आपको एक सेकंड। जैसे आपने कहा था ना अमेजोन वाला, ये दिखाना है स्टेप नंबर 6 में है क्या? Yes, पता sir. नहीं, जिसमें भी है। तो कोई व्हाट्सएप भी भेजता है, वो भी गूगल शीट पे चढ़ता है। Of course, sir, we don't trust what anybody says with the mouth anymore. आप जो भी कर रहे हो जल्दी से इसको चढ़ा दो यहाँ पे, तो आपका टैट उसी से डिफाइन हो जाता है। तो अगर ईमेल आई, ईमेल गया तो वो रिकॉर्ड है, व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप गया तो वो रिकॉर्ड है। सर इसके बाद वाला एक और मैसेज देखें, एक सेकंड सचिन ले चलो। हाँ, इसके बाद वाला क्या मैसेज था इसी का? ये वाला पार्टी मैसेज। 6 ओ भाई साहब दिखाओ। योर टैंकर, पहले वो टैंकर गया, नाउ योर टैंकर इज अंडर लोडिंग। और ये लाइव चढ़ते जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। सर अभी वो येलो हो रखा है ना, तो टैंकर अंडर लोडिंग है येलो वाले में। ये येलो है ना यहाँ पे, ये टैंकर अभी 1:53 तक भर के आना है। 1:53। यस सर, 1:53 तक आना पड़ेगा, नहीं तो रेड हो जाएगा ये। और ये प्लान था इसका, ये जब गया था ये 10:35 पे गया। इसका प्लान था 10:58 पे जाना, गया ये उससे 10-15 मिनट पहले। और अब ये टैंकर वापस इस समय आएगा कि 1:53 पे ये वापस आएगा आज। जी सर। और उससे पहले के जितने पार्टी के मैसेज हैं, ये पार्टी का मैसेज है। 10:35 पे ये मैसेज आया था जो अभी आपने खोल के दिखाया मुझे। जी सर। वाह। और ये आप सब अपने फोन पे देख सकते हो। हाँ जी सर। वेरी नाइस। मैं तो कभी देखता ही नहीं हूँ सर, 1 साल हो गया मुझे। वेरी नाइस। लेट्स गो बैक। एक सेकंड पीछे चलो। हाँ, एक सेकंड यही पीछे चलो, एक चीज दिखाना था सर आपको। पीछे चलो एक सेकंड और चलो। लाल वाला कॉलम कौन सा? ये रहा सर, देखिए इसको इमेज अपलोड, इसको यहाँ पे सक्सेना जी को फोन इन्फॉर्म करना था, टैंकर चलान दे दिया सीआरएम को। तो क्योंकि वो 10:28 करना था, उन्होंने 10:31 में किया, तो इनका रेड हो गया और अब इनका सैलरी इससे अफेक्ट हो जाएगा, इंक्रीमेंट। तो 10:28 पे ये काम होना चाहिए था सक्सेना साहब का, मगर उन्होंने 10:31 पे किया, तो ये लाल हो गया और उसको उनके एमआईएस के स्कोर में आ जाएगा। यस सर। वाओ। और ये ऐसे पता नहीं कितने हर रोज निकलते हैं, ये जाते हैं, पता नहीं क्या क्या एक्टिविटी। चलो वापस जाओ। आई एम रनिंग राहुल sir's course, exactly what he taught us. नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए। परचेज पेमेंट ट्रैकिंग क्या होती है? परचेज पेमेंट सर ट्रैकिंग, ये जो परचेस होता है तो पार्टी को जो पेमेंट होता है उसके रिगार्डिंग भी हमने एक अलग से एफएमएस बनाया हुआ है। उसमें अकाउंट डिपार्टमेंट कब किस तरह से पेमेंट करेगी, कितना एडवांस जाएगा, वो सारी चीजें इस पे। तो बड़ा करो सचिन। हर चीज इस पे लिखी हुई है कि कितना कितना क्या पेमेंट है, क्या हिसाब किताब है। तो इसमें करप्शन के चांसेस, गलती के चांसेस अब साइन वाइन करने की जरूरत नहीं है कुछ। नहीं सर। Sir, accounts is also so relieved, na? Because all our purchases is as per the IMS, inventory management system that you taught us. तो आईएमएस से ही सारी परचेज अपने आप हो जाती है। जी सर, और अगर कोई नया प्रपोजल डालता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर प्रपोजल लिंक में जाता है। 1 मिनट मुझे देखना होता है कि ये प्रपोजल ठीक है या नहीं, उसके बाद वो हो जाता है। उसके बाद फुल किटिंग भी उसी में डाला हुआ है और फुल किटिंग के तहत ही सारा सामान आता है। तो एक बंदा इंडेंट करता है, दूसरा आदमी उसको मटेरियल को बुलाता है, तीसरा आदमी उसको नेगोशिएट करता है पुराने प्राइस देख के। फिर जब वो फैक्ट्री में आता है तो वो गार्ड अंदर लेके आता है, वो भी चढ़ाया जाता है। अगर एक हमने MQQS बनाया था, मटेरियल क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्लिप, ये मैंने ही चालू किया था, जो चेकिंग होता है। क्वालिटी कैसे करते हो? क्वालिटी दिखाओ। हाँ, क्वालिटी कैसे करते हो? दिखाना जरा सचिन, अब मुझे याद नहीं है सर, एक बार दिखाओ कहाँ पे है भैया। Yes, sir. Sir, I have sat on my FMSs after 1 year to just review what is going on. For 1 year, I never saw the FMSs. I didn't have any need. I used to only see the MIS code. बस एमआईएस देख लो, पूरी कंपनी चल पड़ती है। एक बार सचिन, एक इमेज दिखाओ ना यार, मैं उसका क्वालिटी कैसे करते हो? आइटम का
अरे एक इमेज दिखाओ। जो माल आ रहा है उसकी क्वालिटी, जो माल आ रहा है उसकी क्वालिटी। सर हम इंडेंटर को बुलाते हैं जिसने इंडेंट किया था, फिर वो उसको चेक करता है, फिर वो स्लिप चढ़ाता है और उसकी फोटो भी खींची जाती है हर एक मटेरियल की और यहाँ डाली जाती है, so that at a later time the indentor cannot say that I didn't see it. तो हर आइटम जो आता है उसकी फोटो खींच के आप डालते हो। Yes, और sir. जरा दिखाओ एक सैंपल और जल्दी से, वापस जाओ, कुछ और दिखाओ। कोई भी सैंपल दिखाओ और MQQS भी दिखाना। MQQS चढ़ता है इस पे नहीं चढ़ता सर, वो IMS में हमने डिसाइड किया हुआ है। अच्छा सर, ये आया है, पता नहीं क्या है। ओके, तो मतलब हर चीज की क्वालिटी की फोटो खींच के डालते हैं तो पता रहता है कि हाँ भाई गड़बड़ तो नहीं है। और सर इस पूरे प्रोसेस में 7 से 8 लोग इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग नेगोशिएशन, एंड आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग एनीमोर। आई एम 100% श्योर इट्स ऑल कमिंग फैंटास्टिक। तो अब नेगोशिएशन भी आपने आउटसोर्स, मतलब आपने डेलीगेट कर दी, क्योंकि yes, आप yes, मेरे जो नंबर 1 है, जो सारा परचेज मार्केटिंग अकाउंट्स वगैरह देखते हैं, वही नेगोशिएट करते हैं, और उसमें भी 4 लोग के सिग्नेचर होते हैं कि उन्होंने ठीक से नेगोशिएट किया कि नहीं किया, किस बेसिस पे किया। वेरी नाइस। ओके, लेट्स गो बैक। ये ब्रूमस्टिक दिखा, अच्छा ब्रूम वो नहीं है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। गो बैक। Bro, sir, somebody's asked a question on ERP over here to you. तरुण, आपको वो ERP ये सब दे देगा तो वही उसी से करा लो। अगर ये सब मिल जाएगा तो उसी से करा लो। जो जो चाहिए, जैसे जैसे चाहिए, जब जब चाहिए, सारी चीजें वो दिखाओ जरा। कोविड के दौरान आप जब टेस्ट करते थे, उधर बताओ कहाँ जा रहे हो। आपको ही दिखाना पड़ेगा। अंशुमन को कुछ नहीं आता। एक्चुअली नहीं आता सर, एक्चुअली नहीं आता। अंशुमन, आपको गूगल आता है? Sir, I tell you, it was the worst experience of my life to learn Google formulas. I don't know one formula. I only know Excel. मैं Excel में बना के देता हूँ और ये लोग कर देते हैं सर। मुझे कुछ नहीं करना होता है इसमें। तो आप गूगल पे नहीं घुसते? मुझे आता ही नहीं है सर, मुझे एक भी फॉर्मूला नहीं आता है। मुश्किल से तो मैं इसको खोलना सीखा हूँ। क्या मैम? कोरोना का दिखाना। करोना जी करोना गेट। ये है। So this Kapil Dev checklist is also good. Then Atithi तुम कब जाओगे checklist. All this I haven't shown you only. अतिथि तुम कब जाओगे? सर वो जितने इंस्पेक्टर्स वगैरह आते हैं ना यहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए, उन्होंने क्या इंस्पेक्ट किया, कौन आया, क्या बोला, क्या दिया गया, क्या लिया गया, वो सारा चीज इसमें नोटेड होता है। आपके टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ कितने ऑपरेशंस में, MDO को छोड़ के? So we have 80 except for the MDO, you have 72 or 73 people in the factory. लेबर छोड़ के? Sir around 55. 55 लोग हैं जी टोटल। ये क्या है? 60 सर लोग। ये कोरोना वायरस चेकिंग गेट हमने बनवाया था मार्च में अभी। तो इसमें डेली जितने भी हमारे स्टाफ हैं, वो जो ड्राइवर्स आ रहे हैं, वो जो विजिटर होते हैं, जो लोग भी फैक्ट्री के अंदर आते हैं, सभी लोगों का चेक होता है। और अगर कोई एक मिनट, ये क्या क्या चेक करते हो? टेम्परेचर चेक करते हो? है और उनसे पूछते हैं आपको खांसी या सर्दी कुछ ऐसे तो कुछ है नहीं आप लोग का, तो सबसे पहले वो लोग आके टेम्परेचर चेक करवाते हैं। अगर टेम्परेचर हाई है तो उन लोगों को वो हटा देते हैं, उनको बोलते हैं कि आप वापस जाओ। अभी तक ऐसा इंसिडेंस हुआ नहीं, 2 या 3 बार। फोटो खींचिए, फोटो दिखाइए। हाँ, और उनको हैंड वॉश करते हैं वो लोग। हमने वहाँ पे वॉश बेसिन सब बनवा के रखा हुआ है। ये क्या है? ये इनके फिंगर्स में एक रेड और एक ग्रीन मार्क लगा देते हैं, जिससे कि इनका हैंड वॉश हो चुका है, टेम्परेचर चेक हो गया, सारी क्वेरी, तो उसके बाद वो मार्क लगा के और फोटो खिंचवा देते हैं। तो आप इसको देते हो कि तेरा बुखार चेक कर लिया, तेरा हैंड वॉश कर दिया, अगर ये दोनों कर दिया तो निशान लगा दिया इलेक्शन वाला, और फिर इसको अंदर घुसने देते हैं। अगर कोई आदमी मिला बिना निशान के, उसको बाहर निकाल दो। जी सर। ये कोविड के दौरान ये सारा का सारा काम सीन अभी चल रहा है सर, तब से स्टार्ट किया था, अभी स्टिल चल रहा है। वेरी नाइस जी। और बताइए, अतिथि तुम कब जाओगे क्या होता? दिखाओ अतिथि तुम कब जाओ। कपिल देव always along with my people, all the check. We wanted to also have fun, yeah. It's not all about work. अतिथि तुम कब जाओगे? अतिथि तुम 80 kg, हाँ ये वाला। ये जितने ऑफिसर्स आते हैं रिस्पेक्ट सर, ये अभी हमने इंस्पेक्शन के लिए कुछ टाइम पहले, 1-2 महीने पहले शुरू किया है। इसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स आते हैं,
तो उनका है कि कौन आए थे, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका फोन नंबर क्या है, वो सारी चीजें इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं। और उसके बाद जो गूगल फॉर्म के थ्रू, हाँ गूगल फॉर्म के थ्रू, और अगर एचओडी को पता चलता है कि हाँ वो लोग आने वाले हैं तो एचओडी बता देते हैं एचआर डिपार्टमेंट को, ये लोग फिल कर देते हैं। उसके बाद हम उनको एक फॉर्म देते हैं और खोलो उस फॉर्म फॉर्म को इस पे। ये जो है एचओडी इसको गूगल फॉर्म के थ्रू इसमें ही सारा डिटेल लिख देते हैं वो लोग कि कौन आए थे, क्या फोन नंबर था उनका। और कई बार 2-3 लोग साथ में आते हैं तो उन लोगों का भी हम लिख देते हैं। इसमें हमने 2 का मेंशन किया हुआ है, अगर कोई 3 या 4 होते उसके बैक साइड में कर देते हैं, वो किस टाइम आए थे और किस टाइम वो लोग यहाँ गए वो मेंशन करते हैं। और साथ में जब वो विजिट कर रहे थे, सचिन दिखा सकते हो उसको पूरा? We got the sense. Let's go back. Go back. चलो कपिल जल्दी। देव दिखा दो। अच्छा, आपका पूरा क्या वो भी कपिल देव चेकलिस्ट दिखा, और आपकी जो प्रोडक्शन की चेकलिस्ट है कि मशीन जी। चल रही है कि नहीं चल रही है, उसकी सेटिंग ठीक है कि नहीं, वो दिखा दो। वो अभी सर कपिल देव चेकलिस्ट मैं बोलूं? हाँ कपिल देव चेकलिस्ट है, क्या है यार, एक बार तुम ही बता दो, मैं तो भूल ही गया। सर ये हमारे यहाँ 2 एम्प्लॉइज थे, वो कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर लेते हैं, तो उनके लिए एक दिन पहले भरा जाता है कि कल वो लोग किस टाइम किस डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज काम करने वाले हैं। उनका सारा डिटेल्स इसमें गूगल फॉर्म के थ्रू भरा जाता है। एंड ऑफ द डे में जो जिन पर्सन ने उनको काम के लिए लिया था वो इसकी फोटो खींच देते हैं, और अगर वो काम नहीं हुआ है तो उसको पेंडिंग लिख देते हैं और बता देते हैं कि किस कंडीशन में काम है। तो ऐसे उनका डेली का जो है वो सारा कुछ इसमें भरा जाता है। और कभी अचानक किसी दूसरे डिपार्टमेंट को इनको काम में लेना हो तो वो हम चेंज करवा देते हैं। सो सर सब लोग इस दोनों लोगों को रगड़ रहे थे, जब से हमने चेकलिस्ट डाला है, लड़ाई एफएमएस बना दिया है, तब से लोग उनको काम ही लेना बंद कर दिए, तो क्योंकि अभी अब वो- उनकी जवाबदारी हो गई है। जी सर, उनको बताना पड़ता है कि किस जगह के काम के लिए लिया है, कितने घंटे उनको काम उस पर्सन के लिए। तो जहां कोई आपके यहाँ मेल प्रैक्टिस होती है उस पे चेकलिस्ट एफएमएस या कुछ लगा देते हो पीएमएस, वो दिखा दो। फैक्ट्री का मशीन चलाने का जो है, जो मशीन चलाते हो, Yes, sir, प्रेशर yes, sir, मेंटेन yes. करते हो, ये है सर, ये क्या लिखा है? चेकिंग पैरामीटर ये है, बेंचमार्क ये लगा दिया है कि ये बॉटम ऑफ कन्वर्टर में ये होना चाहिए। आगे क्या है? जी सर। आगे दिखाइए सर। ये यही है टाइमिंग से सर सेम है ये। तो इसमें हर चीज की जो रीडिंग है मीटर की वो यहाँ लिख देते हैं। Yes, Yes, sir. sir, yes. All. What is the range? It's all written over here. This is a highly complex, complicated, and dangerous plant, sir. We are manufacturing steam at 26 degrees, at 26 tons per hour. We have the steam at 350 degrees superheated steam. We are burning the sulfur at 1,000+ degrees centigrade in a big furnace. And we are manufacturing sulfuric acid to top it all. So it's a very, very dangerous and highly reactive plant. ये फोटो दिखाओ, ये सब डायल्स की फोटो है जी। ये क्या है दिखाओ भैया। नहीं नहीं ये नहीं, जो पैरामीटर्स था यार, हाँ ये दिखाओ। ये हर एक चीज की इमेज खींची जाती है सर। ये फ्लैंज में लीकेज आ रहा है, शायद उसका है। 30 साल पुराना प्लांट है सर, बहुत मेहनत से इसको हमने बनाया है, चेकलिस्ट वगैरह को। ओके, शो अस योर मैन्युफैक्चरिंग थिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग में आप, ये क्या है? डायल है सर, कितने एयर प्रेशर में चल रहा है। तो ये आप पहले उसको बोलते हो कि वहां लिख, और उसके बाद फोटो खींच के भी डाल के बाबा इतने ही स्पीड चल रहा है। नहीं सर, वो पहले फोटो खींच के डालता, नहीं तो उसका टाइमिंग खराब हो जाएगा, उसके बाद वो लिखता है। ओके ग्रेट, लेट्स गो बैक। शब्दों पे भरोसा नहीं है सर, एक्शन पे है सर। ओके लेट्स गो बैक। आप कुरियर ईमेल ये सब भी मेंटेन करते हो? क्या करते हो? क्या मेंटेन करते हो? कुरियर ईमेल कितनी आई, कितने गए, क्या हुआ? ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड है सर। अच्छा, गुड। सो गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस? Anything on training? I'll just tell you about it. हाँ, वो दिखाओ, कोई ट्रेनिंग का है वीडियो, परचेज वाला है ना? सचिन परचेज का सर एक ट्रेनिंग वीडियो दिखा दे 2 मिनट के लिए सर। सर Everybody knows training videos now.
सेफ्टी पे कुछ है, क्या है सेफ्टी पे? सेफ्टी भी मेजर करके रखते हो? सेफ्टी वाला दिखाओ जल्दी से सचिन सर। दिस वाज सेफ्टी दिखा दो। बहुत अच्छा था ये, क्योंकि ये मैंने बनाया ही नहीं सर, मुझे पूरा 1 घंटा लगा इसको बनाने में, बाकी इन लोगों ने सब किया सर। दिस वाज अ चेंजिंग डेट फॉर मी व्हेन आई वाज इन द फैक्ट्री। सो दीज आर फायर बकेट्स। अब फायर बकेट में क्या चेक करना है? ब्रोकन और फायर बकेट का स्टैंड, फायर बकेट इटसेल्फ, उसके अंदर का सैंड, ये सारी चीजें होती है। मतलब खाली बकेट, आप खाली फायर बकेट में देखिए सर, थोड़ा नीचे चलो ना भाई। अच्छा ये देखिए, रहने दो। इफ फिल्ड विद सैंड, सैंड क्लेanलीनेस, बकेट हैंडल का कब्जा, कि वो क्लैंप को कब्जा बोलते हैं सर। बकेट कंटेनर, बकेट होल्डर, हुक, they have to check all of this. This is done every 3 months because it's not needed more than that. और ये कौन से प्लांट में लगा हुआ है, ये सारी चीजें वो तक किया हुआ है। So this is our safety checklist sir. Very nice, very nice, excellent. And imagine this, my manager production, he made the whole thing, and these people put it on Google, and then Meenu sat with all of them, and then they just launched this on their own. तो अब सिस्टम्स आप बनाते हो अंशुमन, कौन बनाता है कौन से सिस्टम सर? ये सारे सिस्टम, एफएमएस, चेकलिस्ट अब कौन बनाता है? सर अब तो मीनू बनाती है, सीताराम जी बनाते हैं, 3-4 लोग हैं जो ये लोग मिलके बनाते हैं। मेरा तो डीएमई है, वो बनाता है। मेरा कुछ लेना देना नहीं है सर अब इन चीजों में। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ सर, 1 साल बाद तो मैंने ये चेकलिस्ट और एफएमएस देखे हैं। आई डोंट नीड टू सी इट, नो, शी इज लुकिंग आफ्टर इट। ये कौन सी चेकलिस्ट देखेगी, उसका भी चेकलिस्ट बना हुआ है। वेरी नाइस, आपने इनकी भी चेकलिस्ट बना दी, क्या क्या देख रहे हैं? हाँ, और इन टर्न शी हैज मेड अ चेकलिस्ट ऑफ एवरीबॉडी व्हाट दे आर टू सी। पीसी वगैरह का भी पूरा चेकलिस्ट बना हुआ है। वेरी नाइस। सर आप फैक्ट्री में आते हो, आपका केआरए बना हुआ रहता है कि आपने आज क्या करना है। स्क्रीन खोलो और काम पे लग जाओ। वेरी गुड, We वेरी। have not left anything up to chance, sir. गो बैक। वापस जाइए। इतने जगह सेफ्टी की चीजें लगी हुई हैं अलग अलग। नीचे जाओ जरा। आपके 140 ये सिस्टम चल रहे हैं? हाँ सर। वेरी गुड। Plus there are more which are upcoming, lots of more, so that's why I said 70 and 60. ओके, Actually. चलो जी, लेट्स गो बैक। कम बैक, छोड़ दो इसको, बंद कर दो। गाइज यू गॉट द आइडिया? गाइज एवरीबडी यू गॉट द आइडिया? रिश्ते की चेकलिस्ट क्या होती है बता दो, बस खोलो मत। सर रिश्ते होते हैं कि हम लोगों को करीबन 120-125 लोगों से मिलना होता है। 20-25 डिपार्टमेंट्स है जहां पे जाके आपको लाइजनिंग करनी होती है, तो आपको उनसे रिश्ता मेंटेन करना होता है। तो लाइजनिंग को हमने रिश्ता बोल दिया है, तो वो रिश्ते चेकलिस्ट है। 1 सेकंड दिखा दे सर, मजा आएगा सबको। एवरीबडी नीड्स इट इन दिस कंट्री। रिश्ते की चेकलिस्ट दिखाओ मीनाक्षी, बताओ क्या है, तुम्हें पता है ना? मुझे sir, you know, I can't explain because I have no idea. She knows everything. Though I made it, but I don't remember now. I don't know. Licensing का checklist. जल्दी से सर इसमें हम जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिनसे मिलने जाना होता है, उनका सबका फोन नंबर, डिटेल्स, उनके क्लर्क जो है, असिस्टेंट है, सभी लोगों का फोन नंबर हमने इसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, और कौन जाएगा, कब जाएगा, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है। लोकेशन भी मेंशन किया हुआ है कि वो रामपुर है, लखनऊ है या कानपुर, कहाँ जाना है, और वो सारी डिटेल्स इसमें होती हैं। इसमें पीसी रिमाइंड करवाना शुरू कर देती हैं। उसके बाद जो भी पर्सन विजिट के लिए जाता है उनसे बातें करके वो अपनी रिपोर्ट दे देता है। फिर एमडी से आगे स्क्रॉल करिए, लेफ्ट राइट। तो ये सब पीसी भगा के चला रही है सबको? हाँ जी सर। और ये सब इसमें क्या है? 3 days आफ्टर प्लान डेट सबमिट द रिपोर्ट, क्या है ये सब? ये जब कोई कहीं विजिट करने जाते हैं वो 3 दिन के बाद ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, एमडी सर के लिए भेजते हैं वो लोग। उसके बाद फिर अभी तो एमडी सर वो भी देखना बंद कर दिया, तो जीएम देख रहे हैं। पहले सर देखते थे, अब सर ने वो काम भी दे दिया इधर, तो जीएम ही देख लेते हैं। उनको कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वो उनसे पूछ लेते हैं फिर। ठीक है जी, ग्रेट, लेट्स शट दिस ऑल नाउ। हो गया इनफ। मतलब गाइस दिस विल गो मैड बिकॉज़ आप शीट पे शीट देखते जाओगे, दिस विल नेवर एंड। ये तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। Anything else you want to share, speak about, Anshuman? So after the video which I want to show them, which is my
My biggest takeaway from this course is what I'm about to show you guys, which is my integration with my staff, which have actually become my best friends and my family from my heart. So Sachin, aap video lagaoge? Yes, sir. I hope you guys enjoy this because I love it. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने। वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। Awesome. मजा आ गया. Very nice. Guys, I'm just going to thank you. I'm just going to leave you guys with some of my best practices. Actually, let me just tell you that I'm just here to tell you to shut your eyes and do this course with full gusto. Anyways, if you don't like it, there is a refund policy. So how does it matter? You're not even taking a calculated risk. There is no risk in this course. Please do this for yourselves, because we all feel that being an entrepreneur is the biggest curse in life. साला इससे अच्छा तो हम नौकरी कर लेते हैं. हम मैनेजर से लेके पियोन तक का सबका काम खुद ही कर रहे हैं. You don't have the worst people or the worst business. You will see the revelations that come in front of you during the course, because हमें धंधा करना किसने सिखाया? हमारे मॉम डैड ने. और उन्हें किसने सिखाया? उनके मॉम डैड ने. So everybody has just done it by hit and try. There is this gentleman here, Rahul ji, who has trained thousands of us
एक साड़ी वाले से लेके जिसका 2.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर था, एक 4,000 करोड़ रुपए के बंदे को इन्होंने ट्रेन किया है। मेरे सामने कई 4,000 करोड़ रुपए वालों को ट्रेन किया है, मुझको भी ट्रेन किया है। एंड आप किसी से कुछ भी पूछेंगे ना, वो आदमी सेम चीज आपको स्टोरी रिपीट करेगा जो स्टोरी मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको। This is the Bhagavad Gita of Indian business, and you will save your future generations from trauma by doing it. It's not just your businesses. अच्छा बस It's you who will change, and it's your life which only revolves around money which will change. And you will make 100 times more money than what you are making because you will change. Your friends circle, your relationship with employees, your parents, your children, your clients, how you feel about money, every goddamn thing will change. रणवीर सिंह ने कहा था दिल धड़कने दो पे कि पापा आप मेरे लाइफ बोट है, और हम कहते हैं बीसीआई कोर्स और राहुल जैन जी आप हमारे लाइफ बोट हैं। और आप मेरे मॉम डैड भी सेम चीज कहते हैं कि अगर राहुल जैन नहीं होता ना, मेरा ये वाला बेटा तो बिल्कुल खो जाता। So I wish best of luck to all you guys. Thanks for tolerating me. Sachin, 1 minute please. Me and my team, we would just like to take a bow in front of all of you. So thank you so much, and thank you for everything. We had a blast, sir. Thank you so much. Thanks a lot, Anshuman. Thank you. Thanks a lot. So really nice कि आप you could share your story to share the possibility that's there with all of us on what we can create. So thanks a lot. No, sir, what you can create, not we can create. I'm not joking, sir. अगर आप लोग एक्चुअली में एंटरप्रेन्योर, मतलब आप लोग एक्चुअली में जिंदगी जीना चाहते हैं ना, और जिस तरीके से धंधा कर रहे हैं, जहाँ पे 4 दिन का समय नहीं है हमारे अपने पास, सिर्फ 2 महीने के लिए कोर्स करिए। सर वो रिफंड पॉलिसी 2 महीने बाद है ना, तो सिर्फ 2 महीने के लिए कोर्स करिए सर, आपका पूरा पैसा वापस कर देंगे अगर आपको कोई इसका फायदा नहीं मिलेगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, प्लीज ये कोर्स करिएगा। अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, अपने माँ बाप की जिंदगी, and I'm sure none of you have been like me in the past. You've not had that colorful a past, but you are going to have a horrible future if you don't do this. अच्छा ठीक है, ठीक। Ajay sir, thank you so much. Thank you जी। For making all of us what we are. Thank you जी। We owe you everything, sir. So much जी। Thanks a lot।